ایکچولی کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے اسکول ٹرپس تو ضرور جاتے ہیں میری ٹائم میوزیم. تو وہاں تو آپ نے جہاز اندر سے دیکھا ہوگا, 5 روپے کا ٹکٹ دیں اور اندر جا کے بیٹھے. تو یہاں میں نے دیکھا ہوا تھا. Hello, Assalamualaikum, namaskar, Ali. This is Sayyid Ali once again with Hina Altaf. Thank you, Ali. Thank you عزت دینے کے لیے, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ We're good, TikTok, and welcome to another exciting session of Footprints. Yes, and we are very excited کیونکہ آج کی جو ہماری celebrity guest ہیں, she's a wonderful actress, she's a new mom, and اس کے ساتھ she is running her own business. Oh, wow. So which is a tough thing, کیونکہ آج کل کے وقت میں ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ یار کاروبار میں ہاتھ تو نہ ڈالو, بٹ یہ لوگ ڈال رہے ہیں کاروبار میں ہاتھ, تو پورا ڈال رہے ہیں. We have none other than Minal Khan on the podcast today. السلام علیکم. Assalamualaikum. وعلیکم السلام. How are you? I'm good. How are you guys? Great. So Minal, I think after your son, this is your first ever interview. Yeah, اور میں آج نا بڑی وہ نروس ہو رہی ہوں, کافی ٹائم بعد اتنے سارے کیمراز and talking to people, actually talking to other people also جو لوگ دیکھیں گے. Yeah, but I'm happy to be here. چلو great. So this podcast is all about traveling. ویسے زیادہ تر علی ہی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, میں چاہوں گی کہ ڈومین علی ہی لیں. So basically, You're good with explaining. کیا اچھا موقع دیا آپ نے مجھے. But so basically we'll just talk about travel, from your first flight experience to your intercity travel, anything and everything about traveling. So کب سے یاد ہے, کب سے travel, کوئی first family vacation, first flight, domestic, international? ڈومیسٹک تھی میری, لاہور گئی تھی میں اپنی موم کے ساتھ ایک TVC کے لیے, اور بالکل ایئرپورٹ پہ جا کے نا کچھ سمجھ نہیں آیا تھا مجھے اتنی. ایک تو میری موم بھی فرسٹ ٹائم میرے ساتھ جا رہی تھی, اینڈ میرے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ میں تو بچی ہوں بٹ مجھے مما کا خیال رکھ کے ان کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے. تو دیٹس اے میموری جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. اٹ واز فن, مزہ آیا تھا. نائس. اور کہاں جا رہے تھے آپ لوگ؟ لاہور. آئی ٹولڈ لاہور, کراچی سے لاہور. فرسٹ ڈومیسٹک فلائٹ تھی میری کراچی. اچھا, زیادہ آپ ایئر کرافٹ موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اگر کوئی رشتہ دار آ کے بتا دے کہ جہاز اندر سے ایسا تھا ویسا تھا, تو واٹ واز یور ایکسپیرینس کہ اچھا میں ایکچولی کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے اسکول ٹرپس تو ضرور جاتے ہیں میری ٹائم میوزیم. تو وہاں تو آپ نے جہاز اندر سے دیکھا ہوگا, 5 روپے کا ٹکٹ دیں اور اندر جا کے بیٹھے. تو یہاں میں نے دیکھا ہوا تھا. ریسٹورینٹ بھی جائیں گے پیزا کھانے, اور وہاں ایک مووی بھی دیکھیں گے جہاں ہماری فوجی ساری. اوکے, تو پہلا انٹرنیشنل ٹرپ کہاں کا تھا, کیسا تھا, کال جب آئی یا پتہ چلا کہ جا رہے ہیں, واز اے ورک ٹرپ, لیجر ٹرپ؟ اٹ واز اے ورک ٹرپ ود مائی فادر, اور ہم تھائی لینڈ گئے تھے, ایمن اور میں ساتھ میں. وہ بھی کافی میموریبل تھا کیونکہ ایک تو انٹرنیشنل جا رہے تھے, خوشی بہت تھی, اور بابا نے نا سب چیزیں بہت سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. ہماری فلائٹ سے ہمیں صرف ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, تو وی واز سو ایکسائٹیڈ, اور چھوٹے بچے بھی تھے, بٹ اٹ واز فن. تھائی لینڈ از ناٹ اے پلیس جہاں آپ آبویسلی اپنے ڈیڈ کے ساتھ جاتے تو وہ بھی بیچارے تھوڑے سے نا گھبراتے تھے ہمیں کہیں لے جانے میں باہر ادھر ادھر, بٹ انہوں نے ہمیں بہت انجوائے کروایا تھا. اور کل ہی میں دیکھ رہی تھی, میں 10 ایئرس پہلے گئی تھی تھائی لینڈ, میرا فرسٹ ٹرپ تھا. فیس بک پہ میموریز پاپ اپ ہوتی ہیں تو اس میں آیا, تو آئی واز کہ یار 10 سال مجھے ہو گئے TVC کیے ہوئے, تو میں تو پتہ نہیں کتنے سال سے کام کر رہی ہوں. I felt a little bit old yesterday. چلو ٹھیک ہے. اور کیسا تھا پہلا فلائٹ ایکسپیرینس؟ انٹرنیشنل فلائٹ, ویزا, امیگریشن, دیٹ ہول پروسیس. Everything was very smooth کیونکہ my father was in police, so he had so many people, ان کے فرینڈس تھے, تو وہ جہاں جاتے تھے ان کو کوئی مل جاتا تھا, تو everybody made it very easy for us. اور ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں تھے, ہم ایک ایجنسی کے تھرو ساتھ گئے تھے, تو وہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو ہمیں ہیلپ کر رہے تھے, تو اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ فار اس. فلائٹس میں ڈر تو نہیں لگتا؟ فلائٹ میں ڈر, آپ یہ بات میرے ہسبینڈ سے پوچھیں, وہ تو مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب جہاز ٹیک آف اور لینڈ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں شاید برابر والے بندے کو بھی ڈرا سکتی ہوں. مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے. اچھا, میں یہ نہیں کرتی, برابر والے کو نہیں ڈرتی, میں خود خاموشی میں اینگزائٹی میں مر رہی ہوتی ہوں. You ask my managers, you ask my friends, family, I'm so scared. لیکن مجھے شوق بہت ہے جہاز میں بیٹھنے کا. اتنا ٹریول کرنے کے بعد بھی اب بھی لگتا ہے؟ بہت زیادہ لگتا ہے, جہاز کا بھروسہ نہیں ہے. اچھا اچھا. سو منال, مائی نیکسٹ کویشچن از کہ ایک تو ٹرپ ہو گیا آپ کا آپ کے والد کے ساتھ, کیونکہ وہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, بورڈنگ پاس, پاسپورٹ, اسٹیمپ لگ گیا, نہیں لگا. تو جب آپ دونوں اکیلے گئے تھے ایک ساتھ, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا, کیونکہ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اور زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہر چیز خود سے کریں گے, اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مام اور ڈیڈ آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں, تو یو بیکم مام اینڈ ڈیڈ. تو ایمن, میری مام ڈیڈ بنی ہوئی تھی, میں ایمن کی موسٹلی میں ہوں جو ساری چیزیں لائک چیک ان کروانا, اور لگیج کدھر ہے, ٹیگس کس کے پاس ہے, سیٹ نمبر کون سی ہے, اور کون سی فلائٹ ہے, کون سا کب کون سے ہوٹل میں بکنگ ہوئی ہوئی ہے, دس از آل می. تو ابھی بھی میں کرتی ہوں, اس وقت بھی سارا کچھ میں نے کیا تھا, بٹ مجھے وہ اس طرح سے یاد ہے کہ
वो एक वर्क ट्रिप था, बट एमन एक दिन के लिए शूट पे गई थी, बाकी दिन हमने इतना एंजॉय किया था। और जब हम वापस आए आई फेल्ट कि मैं लाइक यू नो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम लाइक यू नो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हमारे मॉम एंड डैड ने भी हमें इतना अब ट्रस्ट करके भेजा और हम वापस भी आ गए सेफली, तो हम नेक्स्ट टाइम भी कहीं जा सकते हैं। तो आई वेंट टू यूरोप आल्सो विद माय फ्रेंड मरियम for a 12-day trip alone. Nice. So yeah, it was a fun trip. Nice. तो अच्छा, ये तो हो गया थाईलैंड। यूरोप का ट्रिप कैसा था? खुद कैसे प्लान किया, कैसे कन्विंस किया कि मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त यार के साथ? कन्विंस मुझे एमन ने किया था, बिकॉज एमन की शादी हो गई थी, तो एमन यूरोप गई थी अपने हनीमून पे। जब वो वापस आई तो मेरी तो शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल थी। एमन मुझे दिन रात अपने हनीमून के बारे में बताती थी, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, तुम्हें भी जाना चाहिए, यू शुड गो, जाओ जाओ। तो मैंने बस ऐसे ही बाबा से पूछा, बाबा ने कहा चलो देखते हैं, कर लो प्लान। तो मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और लकी थी मैं कि मेरा मुझे वीज़ा मिल गया। तो मैं चली गई अचानक से, और पूरी ट्रिप जो थी वो मेरी मुनीब ने प्लान की थी, टिकट्स बुकिंग से लेकर कहाँ मुझे जाना है, मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ से जाना पड़ता है, सब चीज़ें मुझे मुनीब ने प्लान करके आया हो वहाँ पे, तो बहुत आसानी हो जाती है कि पूरे प्लानर मिल जाता है ऑर्गेनाइज्ड, कि यार कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यूरोप में ऐसी कौन सी जगह थी जिसको सोच के यू वर एक्साइटेड कि यार ये मुझे ज़रूर देखना है? अच्छा, सो मैं 5 कंट्रीज़ ही गई थी वहाँ पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय आई थिंक स्पेन में किया था। क्योंकि मुझे स्पेनिश वैसे भी बहुत, मुझे स्पेनिश कल्चर वो सब चीज़ें मुझे बड़ा पसंद है, मुझे स्पेनिश फूड बहुत पसंद है। तो हम लोग वहाँ गए थे। मेरी ट्रिप का हाईलाइट आई थिंक वो था कि मैंने बहुत वहाँ इन्जॉय किया था। और कौन सी जगह जाके मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी कि यार ये तो बहुत यार एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था कि स्पेन में एक जगह है वेलेंसिया। मुझे लगा था कि हमने जब उसको पिक्चर्स में देखा कि वो बहुत अच्छी होगी, हमने अपनी एम्स्टरडैम से हम निकले, वेलेंसिया पहुँचे ट्रेन में। जब हम वेलेंसिया पहुँचे तो वहाँ मुझे कुछ, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब यू नो आप इतने ग्रैंड एयरपोर्ट देखते हुए लाइक यू आर इन यूरोप डूड। और मैं जब वहाँ पहुँची हूँ तो लाइक अंधेरा और यू नो अजीब अजीब से क्रैंकी पीपल और सारे मैंने कहा यार ये हम कहाँ आ गए मरियम, सिर्फ मैं और मरियम, और ट्रिप का बिल्कुल लास्ट लेग था। तो यू नो आप कैश पे भी शॉर्ट हो जाते हैं, आपके कार्ड्स भी डिक्लाइन हो रहे होते हैं, और आप उस ट्रिप पे होते हैं जब मोबाइल में भी आप सब कुछ बचाओ, एमबीज बचा रहे होते हैं यार अभी इंटरनेट नहीं खोलना, खत्म हो जाएगा। तो ना हम वहाँ पहुँचे, वी टुक अ टैक्सी। तो हमने फर्स्ट टाइम ही अपना एयरबीएनबी किया था, बाकी हमने सारे होटल्स बुक किए हुए थे, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज वी बुक्ड इट थ्रू एयरबीएनबी। सो हम पहुँचे, हमने अपनी टैक्सी को लोकेशन दिखाई कि ये है, तो उसमें 1 घंटे की लोकेशन आ रही। तो मुझे कुछ समझ, अब हमने कहा चलो हो सकता है ये ना ये एयरपोर्ट थोड़ा दूर हो और हमने अब अंदर जाना है सिटी में, सिटी सेंटर के करीब। हम जा रहे हैं, अंधेरा 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 अंधेरा, पहुँचे वहाँ पर। तो आपको पता है वो मैट के नीचे या एक बॉक्स में आप कोड डालते हैं, वो खुलता है, फिर कीज निकलती हैं, आप अंदर जाते हैं। तो हम वो सब कुछ, मुझे एकदम लग रहा है मैं फिल्म में हूँ। एक मूवी है जहाँ खामोशी है और आपको सिर्फ डॉग्स की बार्क करने की आवाज़ आ रही है। वहाँ पर एक टैक्सी वाला है जिसकी टैक्सी ऑन है, और 2 लड़कियाँ बगैर सिग्नल्स के मोबाइल में खड़ी हैं, बगैर पैसों के, और खोलने की कोशिश कर रही हैं। जब हमने दरवाज़ा खोला तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम। तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, वी न्यू इट। तो मैंने फिर मुनीम को कॉल की कि यार मुनीम ये तो पता नहीं हम किस जगह पे हैं, यहाँ पर ना वहाँ कोई मार्ट, ना वहाँ कोई रेस्टोरेंट, वी वर हंग्री, अंधेरा, और मुझे इतना डर लग रहा है अपनी लाइफ के लिए। वी वर फाइटिंग कि यार पता नहीं हम यहाँ से कराची वापस जा पाएंगे या नहीं, बिकॉज यू नो मीन didn't know anything वहाँ पे, अंधेरा था बिल्कुल। एंड यूरोप में वैसे भी मॉल्स एंड एवरीथिंग 6 बजे बंद हो जाता है। मेरे साथ भी हो चुका है। मुझे जब मैं 10 बजे मेरी फ्लाइट लैंड की थी, मेरे पास कुछ नहीं था यार खाना खाने के लिए। बट फिर मुझे लगता है अल्लाह ने उस वक्त बचाया। मुनीम को कॉल की, एंजल होता है ना आपका गार्डन एंजल, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा मुनीम आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ कुछ करो, हमें यहाँ से निकलना। तो कहता तुम लोगों को, तुम्हें जब मैं बोल रहा था तुमने क्यों नहीं बुक किया? फिर ही बुकड अ होटल, ही स्पोक टू द गाय जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था, ही वाज सो नाइस, ही वाज अ स्पेनिश गाय, और वो इतना अच्छा था। आप मूवीज़ में देखते हैं जो चाइनीज़ शक्ल के छोटे छोटे क्यूट से लोग होते हैं ना, ही वाज लाइक दैट। तो ही वाज, हमारी दोस्ती हो गई उससे। तो उसने कहा मैं आप लोग को सेफ जगह पहुंचाऊंगा। तो खैर उसने हमें अपने होटल पहुंचाया। जब वो हमारे होटल पहुंचा के चला गया, फिर मैंने मरियम को कहा, मैंने कहा मरियम ये इतना नाइस हो रहा था हमसे, यू नेवर नो मरियम, आपको पता है ना ये नेटफ्लिक्स के ऊपर और हर जगह पे जो होते हैं सब नाइस लोग होते हैं ना। दिमाग आउट कर दिया, क्योंकि मैं इतनी डॉक्यूमेंट्री ये चीज़ आप उस वक्त नहीं सोचते, जब वो मोमेंट गुजर जाता है ना, देन यू रियलाइज इट कि यार इट्स रॉन्ग, वी डिड समथिंग रॉन्ग। कर रहा था, हो सकता है वही हो, आखिर में मर्डर इसी ने किया होगा। वही सीरियल किलर निकले। जितना स्वीट है, हम उसको दोस्ती करना चाह रहे हैं, बट ही इज अ बैड पर्सन। तो खैर इट वाज, उसके बाद फिर मैंने कभी
ऐसे नहीं कोशिश की अच्छा कि मैं वैसे बिना Airbnb ज़्यादा करूँ. लोग Airbnb के लिए Prefer करते हाँ हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि नहीं यार होटल्स ही चूज करो बिकॉज आई नो अ फ्रेंड वो हमेशा बोलती है कि नहीं यार उसमें रिसेप्शन भी होता है चीज़ें भी होती हैं तो यू नो डोंट गो फॉर Airbnb. आई फील कि सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं. Yeah. अगर आपको वेकेशन पे जाके खुद काम करना है तो आप Airbnb चले जाएं. Yeah. अगर आपको वेकेशन पे सिर्फ रूम सर्विस और 24 आवर्स फूड डिलीवरी लाइक सब कुछ चाहिए तो I think अगर होटल. आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से होटल्स आर द बेस्ट. No, Yes. that's not the point. If you're traveling with the family, I think then Airbnb is good for you Yeah. because you get a kitchen, you get a pool, you get everything. और You get बच्चों के साथ extra थोड़ी सी rooms, बच्चों आपको के साथ चाहिए भी होती है apartment. किचन की चीजें Same ये cost, वो. मेरे ख्याल से कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है कि आप फैमिली के साथ Yeah. ट्रैवल करते हैं. होटल्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज Yeah. उनकी अपनी चीज़ें होती हैं. तो yeah. तो सोलो ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो होटल्स आर द बेस्ट. फैमिली के साथ कर रहे हैं तो वही Airbnb वाली आता बात है. है ना Airbnb में तो अगर आप अकेले हो यू कैन लैंड एनीवेयर. You can land, but you know, नहीं, लोग अब तो ट्रैवल सब के लोग इतने इतने detailed शौकीन होता है. होते हैं. लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं यार. हम तो Yeah. डरते हैं, लोगों को डर नहीं लगता. जो एक्चुअल ट्रैवलर्स होते हैं ना, they're not scared of anything. Yeah. अच्छा आप और आपकी फैमिली आप लोग अप नॉर्थ बहुत जाते हो सो मुझे भी बताओ कि कोई मज़े के एक्सपीरियंसेस जो अप नॉर्थ में हुए हो. मज़े के एक्सपीरियंसेस मैं ट्रैवलिंग विद फैमिली तो हर चीज़ ही आपकी बड़े मज़े से चल रही होती है क्योंकि यू वेकअप आपको लगता है आप वेकेशन पे नहीं आप घर पर हैं क्योंकि आपने सारे काम करने हैं. अपनी मॉम का भी करना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपने बेबी को भी देखना है, अपने ये भी करना है, अपने भाइयों को भी देखना है. तो इट्स फन ट्रैवलिंग विद द फैमिली. बट हम जब लास्ट ईयर गए थे नथियागली तो वी गॉट स्टक इन स्नोफॉल. तो वो बहुत हमारे लिए एक डेंजरस था. माई मॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज वो अचानक से ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे थे. तो बट इट वाज अ वेरी वेरी डिजास्टर जो हमारे साथ वहाँ पर अल्लाह ने हमें बचाया. तो वी केम बैक बट इट वाज अ वेरी हैवी स्नोफॉल जिसकी वजह से गाड़ियाँ पूरी स्टक हो गई थी. वी वर स्टक ऑन रोड्स फॉर लाइक 4 आवर्स बट वी मेड इट टू कराची. आई एम अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप्स में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी अभी तक कि यार यहाँ पे मैं दोबारा कभी भी जा सकती हूँ? आई थिंक मालदीव्स. Okay. मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ हमारे हनीमून का ट्रिप पे हम गए थे. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स लाइक इट्स अनरियल. यू कांट एक्सप्लेन इट टू पीपल जो नहीं गए हुए हैं. True. जब आप वहाँ जाते हैं ना देन ओनली यू नो कि व्हाई पीपल गो अगेन एंड अगेन कि उनको मालदीव्स जाना है, उनको मालदीव्स जाना है. तो मैं ऐसे इनको बोलती हूँ कि ऐसे ना हम अपनी 10th एनिवर्सरी पे दोबारा से मालदीव्स चलेंगे. अच्छा 10th का सोचा हुआ है. वो ना थोड़ा सा उसको थोड़ी सी सिकनेस हो जाती है और सारी चीज़ें. तो वो उधर भी बहुत था कि हम क्यों आ गए यहाँ पे, हम कहीं और जाते हैं. वहाँ तो है beaches, बीच बट यू नो थोड़ा सा वर्टिगो उसको हो जाता है बट ओके चल जाता है. अच्छा लेकिन एज फैमिली यू नो नाउ यू आर मैरिड माशाल्लाह यू नो मॉम तो उसके ऊपर भी ट्रैवलिंग आई सीन दैट योर फैमिली एंड माशाल्लाह यू योरसेल्फ यू गाइस लव ट्रैवलिंग. तो ये कैसे हुआ कि नहीं यार आफ्टर एवरी 6 months वी हैव टू गो समवेयर? ऐसा नहीं है दैट वी हैव टू गो समवेयर. अभी मैं रिसेंटली नथियागली गई हूँ कोई 1.5 साल बाद. मैं 1.5 साल में कोई ट्रैवल नहीं किया बिकॉज लास्ट में गई थी अपनी उम्र पे. आई वाज प्रेग्नेंट. उसके बाद आई हैड अ बेबी. फिर मेरी बेबी माशाल्लाह नाउ इज 7 months ओल्ड. तो अब मैंने जाके पहला ट्रिप किया है बिकॉज आई वाज स्कैर्ड. मुझे समझ नहीं आया था कि मैं अपनी बेबी के साथ पहले कैसे ट्रैवल करूँ. और मेरी जो बहन है माशाल्लाह वो हैं जो आप बात कर रही है ना ये सवाल उनसे आपको करना चाहिए. उनका हस्बैंड और मुनीब और एमन आर ऑलवेज रेडी. बस आप उनको बोलें कल जाना है वो बोलेंगे हाँ. दो बच्चों का भी नहीं वो सामान पैक चलो जी ट्रैवल पे. और एमन इज सो लाइक यू नो सुपर मॉम. यहाँ एक बच्चा वहाँ दूसरा बच्चा यहाँ एक को खाना वहाँ दूसरे को डायपर. तो एमन के साथ मैंने भी ट्रैवल किया. तो मेरा बेबी भी मोस्टली वो एमन ही समझती ला मैं प्लेन में चेंज कराती हूँ. तो मैंने तो करवाया नहीं ना. आई विल गो आई विल चेंज हिम एंड आई विल जस्ट सिट. माय वाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दैट बिकॉज़ वी हैव 2 daughters और वो भी इसी तरह ट्रैवल फ्रीक है. वी डिड अ 19-hour ड्राइव from Houston to Chicago. Okay. And 19 19 hours. घंटे. Oh my god. And straight, direct. With kids? Yeah, with kids. And my little one was 3 months. Oh my goodness. Yeah. तो उस गाड़ी में डायपर्स भी चेंज हो रहे हैं. पूरा बेड आप तुमने लगाया होगा. Yeah. सारी चीजें बच्चों के लिए. और वो पूरा एक बेडरूम टाइप हम कैरी कर रहे थे साथ. ऐसा लग रहा था. But it was fun. traveling with kids एक बिल्कुल एक डिफरेंट आपको it's more like उनका ट्रैवल है और आप उनके साथ सिर्फ उनका ख्याल रखने के लिए जा रहे हैं. असिस्टेंट के लिए. But I think by the time goes by, now she's 3. तो अब वो एंजॉय अब वो सेटल हो गई. उसको पता है लॉन्ग फ्लाइट्स अगर 16 घंटे तो मुझे 2 दफा मील मिलेगा. हमारी बड़ी वाली भी काफी ट्रेन हो गई तो उसको पता है कि यार ये छोटी छोटी चीजें अब होती हैं. So now she's all set to go like anyway. अमल ना वो जब भी कहीं जाए उसका अपना सूटकेस होता है. छोटे ना खाला ये मेरा इसमें लाइक मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें टॉयज होंगे क्या क्या चीज़ें होंगी. बच्चों की बस यही सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा मिनाल
पैकिंग कैसे शुरू होती है, यानी कि जब हमारे सूटकेसेस खुलते हैं कि अब इसमें सामान जाना है छुट्टियों का, तो वो पैकिंग कैसे शुरू होती है? यार पैकिंग शुरू तो छोटे बैग से होती है, फिर वो छोटे से बड़े बैग में जाती अच्छा, है। छोटे से शुरू करते हो आप? नो मतलब मैं कोशिश करती हूँ स्मॉल हैंड कैरी में सामान फिट कर लूँ ना, शॉर्ट ट्रिप है, फिर उसमें सामान नहीं आता तो उससे थोड़े बड़े में जाता है, फिर उसमें नहीं आता तो वो वाले बड़े में चला जाता है, और आई एंड अप यू नो कैरिंग अ बिग बैग। Okay. तो मोस्टली मैं तो बहुत नीटली अपना सामान रखती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, ऐसे खोलती हूँ सारी चीज़ें, फिर ऐसे जब जाता है ना तो मैं उसका सारा सामान निकालती रहती हूँ, इसको ये भी ज़रूरत नहीं है, इसको ये भी ज़रूरत नहीं है, उसको वो भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे इज आल्सो लाइक दैट कि मतलब यार मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ कुछ भी, डाल दो। अब गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, खज़ां के कपड़े, बाहर के कपड़े, सारे कपड़े रखने। कभी मौसम बदल जाए तो कभी भी मौसम बदल जाए। सही। ओके, अच्छा, फूड सीन कैसे रहता है हमारे शो पे? देसी फूड लवर बहुत हैं। मैं हूँ। आई लाइक देसी फूड। मैं नहीं खाता हूँ बट बहुत है। मुझे खाने में बाहर जाके किसी भी कंट्री में इशू नहीं होता, मैं कुछ कुछ ना भी कुछ खा लेती हूँ, मैं try कर लूंगी। कुछ भी, एनीथिंग Okay. एनीथिंग। कोई इंटरेस्टिंग चीज या सबसे weirdest चीज जो ट्राई की हो? ट्राई की हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पायला ट्राई किया था, उसको पायला ही बोलते हैं ना, स्पेनिश डिश होती है Yeah. पायला। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कुछ पता नहीं है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने बार्सिलोना में खाया था। Okay. और वियर्ड फूड में क्या वियर्ड, आई लव फूड, आई कैन ईट एनीथिंग, अच्छा होना चाहिए बस। यू वर लाइक दिस सिंस अ किड कि मतलब कोई मेरे रिजर्वेशंस नहीं है खाने को लेके? नहीं, मेरे कोई रिजर्वेशंस ऐसे सच नहीं Very है, आई nice. लाइक फूड। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लाइट की, तो यू जस्ट सेड दैट यू आर अ नर्वस फ्लायर, डर लगता है, तो वो जो 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट होती है, उसमें क्या करना है मिनाल को? हाउ डू यू कीप यार योरसेल्फ अभी डिस्ट्रैक्टेड? तक मैंने 16-17 घंटे वाली फ्लाइट ली नहीं है, मैंने मैक्सिमम 7 आवर्स के लिए, तो इतना मुझे ना बस एक माइंड में चीज़ है कि मुझे ना लाइक डोमेस्टिक फ्लाइट में मुझे ज़्यादा डर लगता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मुझे इतना डर नहीं लगता। अगर मैं जैसे किसी बाहर की कंट्री में भी हूँ, वहाँ से भी अगर मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रही हूँ तो मुझे उसमें भी डर लगेगा, बट मुझे ये पता होगा इंटरनेशनल तो बड़ा जहाज़, बड़े लोग जा रहे हैं यार, इसका क्या है, इतना बड़ा है, इसका थोड़ी होगा, ये सही है, तो उसमें इतना पता नहीं चलता। छोटे जहाज़ से मुझे डर लगता है। ये माइंड का कॉन्सेप्ट है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। So psychological. You can't help it. You are the same person Because यार, I'm also a है ना? nervous flyer. You can't help it. I think बड़े जहाज are okay, small जहाज are not okay. ये और भी ना कि यार ये एयरलाइन ना वर्ल्ड वाइड नंबर 3 पर है यार, ये क्रैश नहीं करेगी। यार लेकिन मुझे ना बस जहाज में बैठती बस बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, then I divert my mind। अल्लाह, मैं इतनी आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं पढ़ती रहती हूँ, और ऐसे आराम से वो तो जहाज में बैठ के अपना आई मास्क लगाया एंड गॉन, और मैं यहाँ पर नर्वस हो रही हूँ, दूसरी यहाँ देख रही हूँ, किसी और को देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, सब बैठे हुए हैं, सबकी शक्लें देख रही हूँ, किसी को डर लग रहा है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है। किसी को डर लग रहा है तो प्लीज ज्वाइन। सिर्फ मुझे लग रहा है। और जब टर्बुलेंस होती है ना, मैं भी कामली ना सबको यूं करके देखती हूँ कि सबके मैं चेहरे देखूँ, यार मर तो नहीं रहे ना, मरने तो नहीं वाले हैं। बट ओ माय गॉड, वी हैड दिस गेस्ट ऑन आवर शो, और उन्होंने कहा था कि एक दफा आई थिंक इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ के वो कहती मैंने खिड़की से ना इंजन तक को फूके मारी कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से पहुंचा दे। अगर ऐसा हो तो मैं तो जहाज में ना बैठ जाऊँ ही ना, अगर मुझे पता चले ना कि लाइक अभी इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब कुछ नहीं, बहाना कर दूँ, ऐसी बातें आपको दिल में दर्द हो रहा है, मुझे नीचे नहीं प्लीज पता निकाल चलती, दे। ऐसी बातें आपको फ्लाइट के दौरान ही पता चलती है। सो ट्रू यार आई थिंक दिस इज द फैक्ट जो मुझे ना ओवरकम करना है अपना ये Fear, डर जो है, जो yeah. फेयर है, बिकॉज यू नो ये फेयर आपको ट्रैवल करने से भी रोकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा प्लान्स बनते हैं और फिर मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, और फिर मैं बैठ के ना सोचती हूँ अल्लाह सुबह कर दूँ कि फ्लाइट है, वो तो जहाज़ पता नहीं वहाँ से जाएगा, छोड़ देते हैं। नहीं जाते हैं, तो मेरे वो तो जाता भी पहाड़ों में से पहाड़ों में से इस वजह से मैं आज तक स्कर्दू नहीं गई कि वो पहाड़ों में से जाएगा, उसका डर लगता है, और लोग कहते हैं इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाइट इन द वर्ल्ड। Yeah. तो मुझे तो, मैं तो शर्मिंदा होती हूँ कि छोटे बच्चे नहीं डरते और मैं इतनी बड़ी होकर डरती हूँ, बट यू नो आई नीड टू। छोटे बच्चों ने हमारी तो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी ना, नहीं मैं देखी नाला नहीं होती। जाती। उनको नहीं पता कि आखिर में मर्डर जब कौन हम भी करेगा। छोटे थे तो हमें भी बहुत शौक था, जब हम बड़े हुए हमारे भी शौक खत्म हो गए। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट शॉपिंग नाउ, कि जब आप जाते हो, यू नो व्हेन यू ट्रैवल, तो सबसे पहली चीज कौन सी लेनी है, और मतलब कितनी शॉपिंग करनी है मिनाल को? करना जरूरी है हर ट्रिप पे शॉपिंग, मतलब बाहर गए शॉपिंग मस्ट है या नहीं? ऐसे नहीं, इट रियली डिपेंड्स कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो तो obviously। बस, और बाकी मुझे ज़्यादातर शॉपिंग करने का शौक है
makeup, perfumes, and I like buying clothes. لیکن ایسا نہیں کہ میں بہت unlimited کپڑے خرید کے آ جاؤں, because آپ کو ایک limited kgs لے کر آنے ہوتے ہیں واپس, تو آپ کو دوسروں کا بھی, پاکستانی بھی گھر کہیں باہر جا رہے ہیں تو سب کے لیے گفٹس آئیں گے نا, تو ان کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے ساری چیزیں. تو آئی گیٹ کام کی چیزیں, اور اب تو اتنا ایزی ہو گیا, آن لائن شاپنگ کرتے ہیں لوگ, وہ آپ ان کو لنکس بھیج دیں, دے بائی اسٹف فار یو اینڈ سینڈ اٹ ٹو یو. اچھا یہ بھی ویسے بڑی آسانی ہو گئی, اب آپ کو مستقل یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آپ جائیں گے تو لیں گے, سامان لاؤں گی, سم تھنگ جو آپ کو پسند آتی ہے, آپ کا سائز اویلیبل نہیں ہوتا, یو کین جسٹ ٹیک اے پکچر اینڈ سینڈ اٹ ٹو دا شاپر, وہ آپ کا پرسنل شاپر آپ کے لیے پرچیز کر کے ڈسپیچ کر دے گا, تو لائف از ایزی. اچھا آر یو ایڈونچرس کرنے کا شوق ہے؟ ایڈونچرس کرنے کا بہت شوق ہے, اور ایڈونچرس کرنے میں پہنچ جاتی ہوں, ریڈی بھی ہو جاتی ہوں, اور اینڈ میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو بھاگ جاتے ہیں سارے پلان کر کے, لاسٹ منٹ پہ دھوکا, غائب, منال از ویئر از منال از گون. تو 2-3 بار ایسا ہوا ہے. مجھے زپ لائن کرنے کا اتنا شوق ہے, بٹ سوات میں ہم اچھا کچھ کیا ہے جہاں آخر تک بھی پہنچے ہو, اور اسکوبا کیا ہو؟ ہاں اسکوبا ڈائیو کیا ہے, اسنورکل کیا ہے, اور بہت خطرناک ایک اسکائی ڈائیو. نو وہ میں نہیں کرتی, مجھے جہاز میں اندر بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے, باہر کی بات کر رہے ہیں. نہیں ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیں گے کیسا لگتا ہے جہاز کے باہر, پھر نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. میں سی پلین میں بیٹھی ہوں, وہ بہت ایڈونچرس تھا. یا مالدیوز میں, تو وہ تو بالکل اس کے دروازے بھی نہیں تھے, اس کی کھڑکیاں بھی نہیں تھی, اس میں اے سی بھی نہیں تھا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, اس میں چپل اتار کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. لوکل بس جو اڑ رہی ہے, اس میں بھی میں سارے ٹائم لپاک پلیز نہیں یار, پانی میں نہیں آتا, پانی میں نہیں ملو, مجھے تو سوئمنگ بھی نہیں آتی پانی میں نہیں. اوکے گریٹ. سو ویسے منال کے ایسی کون سی چیز ہے جس کو یو ول سے کہ یار مجھے باہر ملک جا کے یہ جو چیز پاکستانی کرتے ہیں مجھے بہت آف لگتی ہے, تو یہ مت کرو؟ کچرا پھینکتے ہیں, وہ نہیں پھینکنا چاہیے. باہر جا کے اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں اور دوسروں کے ملک کو بھی صاف رکھیں. اچھا میں نے نوٹ کیا, باہر جا کے نہیں پھینکتے ہیں, یہاں پھینکیں گے کیونکہ یہاں رولز نہیں ہیں, یہاں کوئی فالو نہیں کرتے, یہاں اپنی ہے نا, تو باہر جا کے کرتے ہیں. بات میں نے اپنی ٹریول پہ سیکھی تھی. ہم نے ایک ٹریول بیدار ٹریولس کے ساتھ ہم نے ٹریول کیا تھا, تو جو پورا جنہوں نے ہمارا ٹرپ پلان کیا تھا نا, ہی واز سچ اے نائس گائے, جلال بھائی, انہوں نے نا ایک شاپر بنایا ہوا تھا گاڑی میں پورا. تو ہی یوز ٹو سے کوئی بھی کھا رہا ہوتا تھا نا, کوئی بھی چیز بس میں نہیں پھینکنا, باہر نہیں پھینکنا, ماؤنٹینس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, نیچر ہے, آپ نے ادھر شاپر میں ڈالنا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ میرے دماغ میں اب بیٹھ چکی ہے. تو وین ایور آئی ایم گوئنگ سم ویئر, ایون ود مائی کڈ, اور اس کا کوئی بھی ڈائپر وغیرہ ہوتا ہے, تو آئی میک شیور دیٹ اٹس کوئی ڈائپر تو خیر میں روڈ پہ نہیں پھینکوں گی, بٹ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز, وائپس ہوتے ہیں, کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے, اپنی ہوتی ہیں, تو جسٹ ٹریش آپ باہر نہ کریں, اپنے ملک میں بھی دوسروں کے ملک میں بھی جا کے نہ کریں. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم ایکسائزی جگہ پہ گئے, وہاں پہ ہماری کسی اسٹرینجر سے ملاقات ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن شروع ہو گئی, وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کوئی ایسی چیز کبھی ہوئی ہے, کسی سے کوئی انٹریکشن ہوا ہو؟ ایک میری ایک فرینڈ بنی تھی ان تھائی لینڈ, شی واز فرام بنگلہ دیش, شی از اسٹل مائی فرینڈ, اٹس بین لائک 10 years ناؤ. ابھی تک وہ میرے فیس بک پہ ہے, اور اب تو میں ان سے کافی ٹائم سے نہیں ملی, بٹ شی از دیئر. سو بس ایک ہی ہے, باقی میں جتنا اسٹرینجرس سے بات کرنے کا شوق I think ہے نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ویسے اپنے گھر سے اتنے سارے لوگ لے کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو اسٹرینجر سے کیا بات کریں. جب میں اپنے مطلب ایس ایم کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور ایمن کے ساتھ کیا ہے, لیکن اسٹرینجر سے اتنا, جب آپ کے پاس کمپنی ہو تو آپ کو اسٹرینجر سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت نہیں. اچھا بائی دا وے وین یو ار اے گرل اینڈ وین یو ار ٹریولنگ, لائک یو ٹریول ود ایمن, یو ٹریول ود مریم, تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو بولتے ہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا, اتنے بجے مجھے واپس آنا ہے. کچھ لڑکیوں اپنے لیے بھی کچھ رولس سیٹ کرتی ہیں وین یو ار ٹریولنگ, تو ور دیر اینی رولس فار یور سیلف؟ آف کورس, کیونکہ صبح جلدی اٹھیں گے تو دیکھیں گے نا, اتنی دور سے آئے, اتنا پیسہ خرچ کر کے, پتہ نہیں رات میں کیا کریں گے یار, یہ بھی اتنا پریشر ہوتا ہے. صبح اٹھنا ہے یار, صبح اٹھنا ہے, لازمی صبح ہوٹل میں بریکفاسٹ کرنا ہے, بیکاز وی آر پیئنگ فار اٹ. پیسے خرچ کے انجوائے کرو, شاور کرو اپنا آرام سے, لائک اسپینڈ ٹائم ان ہوٹل, ساری چیزیں. تو مجھے صبح اٹھنا زیادہ پسند ہے ٹریول پہ. وی ویک اپ ارلی اینڈ وی گو ٹو دا ہوٹل آفٹر ڈنر 9 and 8:30, 9, پھر واچ ٹی وی اور اپنا چل کیا, کبھی باہر نکل گئے واک پہ, کوئی کافی لے لی, دیٹس اٹ. لیٹ نائٹس مجھے اتنا پسند نہیں ہے, لائک پارٹی کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. What would you tell especially girls, I mean, why they should travel? کیونکہ جیسے it opens your mind. It opens your mind, it gives you confidence to go somewhere, to do something for yourself. ہماری
लड़कियों में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है, क्योंकि मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ. आई नो कि जब एक लड़की का भाई भी उसको पिक करने आता था ना, तो उसकी दोस्त बेचारी का क्या हाल हो जाता था कि वो मुझे देख ना लें. मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं कि लाइक यू नो वाई यार हम इनसे बात क्यों कर रहे हैं, वो लड़का इससे बात क्यों कर रहा है. यार नहीं होनी चाहिए. आप इतना छुप के अगर रहोगे तो आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. यू आई एम नॉट सेइंग कि गो ऑल आउट, बट यू शुड नो योर बाउंड्रीज एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू नो कि आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज गर्ल्स कैन डू एनीथिंग. वेरी नाइस. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रैवलर आर यू कि यार ये मैं होटल से निकली तो गाड़ी मेरी रेडी होनी चाहिए, या यू वन ऑफ दोस्त के नहीं मैं चल लूंगी कि जितना चलाना है चलाओ. अच्छा, सो आई एम अ पर्सन जो कहता है गाड़ी नीचे होनी चाहिए, और मेरा जो हस्बैंड है वो कहता है नहीं वी विल वॉक. तो हम आराम से वॉक करेंगे. और मुझे कभी कभी ऐसे डिसीजंस पे अपना गुस्सा आता है कि एंड में वो भी मुझसे बोलते सॉरी मिनाल मैं तुम्हें बहुत चला दिया, मैंने तुम्हें बहुत चला दिया. तो उसको वॉक करने का बहुत शौक है, और ना चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ही वांट्स टू वॉक, तो वी वॉक. हम दूर दूर जाते हैं, निकल जाते हैं, वॉक करते हैं, टॉकिंग यू नो, बैठ गए कहीं, फिर चलना शुरू कर दिया, फिर कुछ कर लिया, लाइक यू नो. Okay. It's nice. Nice. अच्छा, whenever you go for traveling, तो वहाँ पर क्या प्रेफर करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि मैं नथिया गली ये सोच के नहीं जा रही कि वहाँ पे गर्मी होगी. बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्नो होना ज़रूरी है या बारिश का मौसम होना ज़रूरी है. तो ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है दिमाग में? कौन सा वेदर एंजॉय करते हैं बाहर जाके, या वेकेशंस पे ये वेदर होना चाहिए? मैं तो सर्दी बहुत एंजॉय करती हूँ, बिकॉज यू नो लेयर करने अपने आप को. और कराची में तो इतनी सर्दी होती भी नहीं है, और आपने जो सारे गर्म कपड़े लिए होते हैं, सॉरी जो आपने सारे गर्म कपड़े लिए होते हैं, जो सारी चीज़ें आपको वो यूटिलाइज करनी होती है, यू नो आपको ड्रेसअप होना होता है. आई थिंक दैट यू कैन डू इन विंटर्स. एंड ह्यूमिडिटी नहीं होती, बाल नहीं ख़राब होते, मेकअप कहीं नहीं ख़राब होता, तो स्किन बहुत अच्छी होती है. और माई हस्बैंड लाइक्स समर्स, क्योंकि उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो मुझे कहते हैं नहीं हम ऐसी कंट्रीज में जाएंगे जहाँ गर्मी होती है. तो वी गो इन द गर्मी वाली कंट्रीज मोस्टली, और फिर समटाइम्स वी गो टू ठंड वाली कंट्रीज. ऑलराइट. सो मिनाल, इतनी सारी बातें हो गई हैं. अब जो मेरा सेकंड लास्ट सवाल है वो ये है, लास्ट सवाल आई थिंक अली का होगा. तो सवाल ये है कि अगर आप मिनाल नहीं होते, अगर आप एक्टर नहीं होते, तो आप किस जगह पे रह रहे होते और क्या कर रहे होते? Could be anywhere in the world ना. कोई भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ओके. वैसे तो मैं मिनाल होती, क्योंकि आई लव माई सेल्फ, नॉट लव माई सेल्फ बिकॉज यू नो मेरा नाम प्यारा है, तो मैं मिनाल ही होती. मुझे अच्छा लगता है. सो और मैं क्या कर रही होती, और कहाँ होती है दुनिया में? कहाँ होती दुनिया में? बहुत खूबसूरत जगह पे होती, कहीं स्विट्जरलैंड में कहीं बैठी होती, अपनी मेरी कॉफ़ी शॉप होती, और यू नो बस अच्छे अच्छे लोगों को मैं कॉफी बना के दे रही होती हूँ, उनके साथ सुबह बातें कर रही होती हूँ. बहुत मूवीज देखी बहुत सोचा है, ये सोचा है, सब कुछ मैंने करना है, मैं ये अपनी लाइफ में करूंगी. अभी मेरी लाइफ का दूसरा फेज है, अभी वो दूसरा वाला आना है, तो जस्ट वेट फॉर इट. अच्छा, सो मेनी पीपल जिनसे मैं बात करती हूँ वो वर्कोहॉलिक्स, उनसे मैं जब भी पूछूं ना रिटायरमेंट प्लान किया, वो कहेंगे यार एक बीच के ऊपर एक कैफे खोलना है, वहाँ पे जाके मुझे भी करना है. सो मेनी पीपल हैव टू से because you know it's just you never did that. It's very peaceful ना. नए लोगों से रोज मिलते. Just imagine you're meeting new people every day and you're learning different things. You know जो travel लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी mind में आप बीच मैंने यही बोला ना कि उनका mind इतना open होता है because they meet a lot of new people. उनकी नई नई चीज़ें आप adapt करते हैं, आप देखते हैं कि यार वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मतलब you know experiences वो आपसे share करते हैं, you learn from it and it helps you. So yeah, I अब love ऐसी एक that. पहाड़ों की एक जगह है वहाँ कोलोराडो में, एस्पेन. मुझे वहाँ पहाड़ में एक घर चाहिए. मतलब जहाँ जो आप नहीं ड्राइव करते हैं सबसे ऊपर देख रहे होते हैं एक छोटी सी लाइट जल रही है, मुझे वो चाहिए. ये तो मेरा मुझे आप दूर से देख रहे हैं कौन से घर में हाँ, लाइट जल कौन रही है, रहता होगा कौन यहाँ, रहता होगा वहाँ कौन रहता, पे. मुझे वो रहना है. Seriously चाहिए. मैंने खुद सोचा है कि जब मैं आई रिटायर व्हेनेवर, तो मुझे बड़ा है कि यार मेरा पहाड़ों में घर हो और मैं पहाड़ों में जाके रहूं. नहीं तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, वो देसी खाना नहीं मिलता वहाँ पे. मैं बना लूंगी. इंटरनेट तो हर जगह आता है. अच्छा, any travel tips that you want to give to young travelers, budget travelers? बजट ट्रैवलर्स, मुझे लगता है ग्रुप ट्रैवलिंग इज वेरी गुड फॉर बजट ट्रैवलर्स. क्योंकि जो पूरे ग्रुप्स के साथ आप लोग ट्रैवल करने जा रहे होते हैं, यू नो लेस बजट पे यू लेस इज मोर वाली बात है उसमें. क्योंकि द फूड इज इंक्लूडेड, द टिकट्स आर इंक्लूडेड, द वीज़ाज इंक्लूडेड, उसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो आई थिंक इट्स बेटर जो लोग बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाह रहे हैं. अच्छा, बट पीस ऑफ माइंड मिलता है व्हेन यू आर गोइंग विद अ ग्रुप.
यार इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब यू नो वहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं. मैंने एक बार ग्रुप ट्रैवलिंग की अपनी मॉम के साथ, मैं इजिप्ट गई थी और मैं ग्रुप के साथ गई थी एंड दे वर वेरी डिफरेंट पीपल, सम फ्रॉम इस्लामाबाद, कोई रावलपिंडी, कोई लाहौर, कोई हुंजा से हैं और कोई कहीं से हैं, मतलब फैसलाबाद से हैं. वो सब इतने एजुकेटेड, इतने अच्छे लोग, मियाँ बीवी प्यारे और प्यार करने वाले लोग, रिस्पेक्ट करने वाले लोग. तो दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी एंड माई मॉम. और उसमें और सोलो ट्रैवलर्स लड़कियां थी 5 जो कहीं दो सिस्टर्स थी, वो लोग न्यूजीलैंड से आए थे ट्रैवल करने के लिए उस ग्रुप में. तो यू नो यू मीट डिफरेंट कल्चर लोगों के और सारी चीज़ें, तो मज़ा आया था. And any tips for young moms because you recently traveled with your kids? So. यार मैंने तो खुद डर से अभी शुरू किया है ट्रैवल करना. सो बस ये है कि बच्चों के साथ when I packed the bag ना हसन का, तो मैं देख रही कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई, बस लास्ट मिनट तक आप ये सोच रहे रह तो नहीं, खाना भी रखना है आपने, ये भी रखना है आपने, एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है. अपनी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि मेरी बीवी भी यही करती है. शी मेक श्योर कि यार बच्चों की सब हो, बट आई थिंक बच्चों दवाइयाँ भी हों, जो चीज़ नहीं भी चाहिए यू नेवर नो कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें भी होनी चाहिए और अपनी चीज़ें भूल जाती है. राइट नाउ व्हाट वी फेस्ड, को मैं इनसे भी डिस्कस कर रही थी कि हम ऊपर गए ना, तो मिरल को थोड़ा सा गला ख़राब हो गया था, उसको थोड़ा कॉफ हो रहा था. तो नेबुलाइजर की पूरी मशीन तो थी बट हम उसका मास्क भूल गए थे कराची में. तो वहाँ जाके एमन बेचारे मुझे कहती मिनाल, आई रियलाइज्ड इट नाउ कि एक इतनी सी छोटी सी चीज़ की इतनी वैल्यू होती है लाइफ में. तो अब मैं अपने बच्चों के लिए ना 2-3 एक्स्ट्रा वो रखा करूँगी चार्ज वाले नेब्स, ताकि मैं उनको वहाँ कर दूँ, बिकॉज शी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट कि वो छोटी सी चीज़ बच्चे की रह गई. तो यार सी और पता भी नहीं होता ना छोटे बच्चे और किस बच्चे को किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कहाँ जाके. सो या बट एनीवे ग्रेट सेशन. लेकिन सेशन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अब हम खेलेंगे गेम और इसका नाम है मेक योर ओन ट्रैवल स्टोरी. सो एक साइड पे पर्सनालिटीज के नाम है और एक साइड पे प्लेसेस के नाम है. मिनाल उस पर्सनालिटी के साथ उस जगह पे क्या कर रही हैं. So you कुछ भी जगह हो सकती है, but you have to be in the story too. Yeah. Okay. Yeah. And we have 3 rounds. These are the people or ये places? हाँ, I think it can be anything, vice versa. यमुना ज़ैदी. यमुना ज़ैदी के साथ मैं Los LA Angeles, में yeah. I think I will have fun with her because she lives in US. तो Yes. वो मुझे बहुत ज़्यादा enjoy करवाएंगी. She can be a local guide, yeah. she can be a local guide to me. Okay, I'll have great. fun with her. Okay, so और कौन है? एमन खान. एमन खान. एमन यहाँ भी मेरे पीछे पीछे. Oh my God! just imagine 2 of us in Paris, dude. You can't. I think हम एमन और मैं अपने बच्चों को और मियाँ को सबको भूल भाल के जस्ट एंजॉय करेंगे. Nice. Okay. सायरा यूसुफ. Cafe with her. I think she's going to be my partner in the cafe. अच्छा वो कैफे करना जरूर है. वो कैफे, मुझे कॉफी शॉप का मेरा ड्रीम है. आई थिंक इनको मैं या तो रिटायर होके कॉफी बना दूंगी लोगों के लिए. Cute. Okay, we just wanted 3 rounds. 3 I think now, yeah. बहुत अच्छा मजा आया मिनाल. I think कि कितनी सारी लड़कियों के लिए कितनी इंस्पिरेशन है कि ये नहीं कि बच्चे हो जाएं तो आप घूमना फिरना बंद कर दें. ये करना जरूरी है. क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी साथ साथ चल रही है. Exactly. Because you can travel while you're young. While you And now can this have is your health. life, so you just better realize it as soon as Exactly. possible. Yes. So आप मिनाल क्या सोच रही हैं कि ओवरकम कैसे करेंगे? जब आप सोचें कि how you going to overcome this fear of flying, do let me know. Yes, हिना, I think you are the first person जिसको मैं कॉल कर रही हूँ. बोलूँगी हिना अब हो गया यार, अब मैंने इस चीज़ को मैंने ब्रेक कर लिया है. I don't think so it can happen. I can't think. It's not possible. All right, but thank you so much, Thank Minal, you for so being much on for this For coming. having me, podcast. guys, it was really fun. And we're going to wrap up this session now. This was me, Hina Altaf, Ali, and Minal Khan signing out. Do not forget to subscribe and hit the bell icon. Take very good care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.